Welcome back to Shape Your Sunday. I hope you're having an awesome Sunday. एंड टू मेक इट मोर ऑसम मैं आ गया हूँ शेप योर संडे का पॉडकास्ट लेके। ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम शेप योर संडे पे ये बातें डिस्कस करते हैं, जैसे फाइनेंस रिलेटेड, हाउ कैन यू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे बनाए, पैसे कैसे कमाए एज अ डांसर। बट दिस एपिसोड फोकस इज ऑन दैट, बट हम थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इस बार हम एक नए स्टाइल के बारे में सीख रहे हैं, एक नए स्टाइल के बारे में जान रहे हैं। इनफैक्ट इस स्टाइल के बारे में मुझे थोड़ा ज्ञात तो था, बट आई डिड नॉट नो मच अबाउट इट। इस पॉडकास्ट को करते हुए ही मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला कि ये स्टाइल है क्या, ये स्टाइल कैसे किया जाता है। एंड ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं बनाऊंगा। द स्टाइल इज़ नेम्ड मेम्फिस जोकिन, and with me is Imaginatrix, one of the very few people in India जो मेम्फिस जोकिन करते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मेम्फिस जोकिन क्या होता है। सो उससे सुनते हैं जिसे पता है, जो करता आ रहा है लगभग काफ़ी सालों से। लेट्स गेट इन आवर पॉडकास्ट राइट अवे। Welcome to Share Your Sunday, and people who don't know, like अगर तुमको नहीं पता है कौन है Imaginatrix, Imaginatrix. Yes, sir. Simple. So you should go fucking check his Instagram. And if you have been on Shape Your Sunday, so मैंने इनका मतलब कई बार repost किया है Shape Your Sunday पे, so you must have gotten and got acquainted with his content and stuff. So without wasting much time, without me babbling about what he does and what he is, let's just ask him, the man himself. And तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, एक्चुअली एक वर्ड है, and then you can go on about it, and that is Memphis joking. What is it? And just go on. It is the hottest topic right now in the dance world. I swear on God, dude. It is the hottest topic. उसकी वजह से बहुत सारी fuck ups हो रहे हैं. Like people are doing intentional fuck up जानबूझ के. So basically, Memphis Jokin is a footwork dance style from Memphis, Tennessee, which is in I think US. The US. So अगर मैं ढंग से बताना चाहूँ मेम्फिस जोकिन के बारे में, सो मेम्फिस जोकिन इज राइट नाउ द नेम is the current term for gangster walking. So basically, gangster walking is a dance style which was created in late 80s and early 90s in Memphis, Tennessee. And जब hip hop culture, obviously जब hip hop rap music बढ़ रहा था, it came from New York, then it spread to California, और जब वो Memphis को hit करा उस culture ने, the Memphis people started creating their own music by slowing the music down. क्योंकि उनका जो तरीका है हर एक सिटी का, अगर तुम देखोगे ना ढंग से, तो तुम्हें पता चलेगा हर म्यूजिक में कुछ ना कुछ ट्वीक्स हैं. Correct. जो उनका म्यूजिक बोलते हैं, जिसकी वजह से so they slowed the music down. और there's a DJ called DJ Spanish Fly, which was the first DJ I think जिसने authentic Memphis music बनाना शुरू करा था at that time. So हाँ, so basically अगर मैं in short कहूँ तो gangster walking is just like a party dance move for the Memphis people at that time. जैसे आजकल हमारे पास मिली रॉक हो गया, हिट देम फोक्स हो गया, वो हो गया. सो ये आज के ट्रेंडिंग पार्टी डांसेस हैं, बट उस टाइम पे उस सिटी के लिए गैंगस्टर वॉकिंग था. सो क्लब्स में the whole fucking city knew how to gangster walk. That's the fucking biggest cultural thing that really attracted me towards it. क्योंकि मुझे नहीं लगता आज पूरी सिटी knew how to do certain thing, तो वो चीज ने बहुत अट्रैक्ट करा मुझे. सो हाँ, सो पूरी सिटी को सब पता था क्या क्या होता है, गैंगस्टर वॉकिंग कैसे करते हैं. इन क्लब्स पीपल यूज्ड टू डू जी ट्रेन. So G train का basically मतलब है they run around in circles, throwing their arms out and speaking get buck, snap the hoe. So उस तरह का वो बोलते थे. और this is dangerous too. At that time जिसने भी G train का flow तोड़ा, they used to beat that motherfucker up straight up. They used to smack that motherfucker straight up. कि इतना प्यार था लोगों को उस G train से, उस flow से. So हाँ, सो यही था. उसके बाद बेसिकली गैंगस्टर वॉकिंग मेम्फिस जोकिन क्यों बना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है. बिकॉज
if you study about Memphis, Tennessee right now, is I think it's one of the most violent city जहाँ पे Okay. गन शूट्स किलिंग्स होती हैं right now. Tennessee, A right? हाँ, rapper, हम correct, है ना? हाँ. So right now I think a News में भी rapper था अभी called Young recently. Dolph. Yes. So there's a rapper right now called Young Dolph which was got killed just because this gun violence and this jealousy gangster shit, you know. So people in Memphis, Tennessee didn't want to put out the gangster name out there कि ये gangster walking Okay, correct. Memphis, हाँ. Tennessee से निकला है. वो डालना नहीं चाहते थे because it started style create इसलिए हुआ था कि जो younger generation है, जो new हाँ. generation आएगी, उसका जितनी भी एनर्जी है वो इस सारे कामों में ना लगे, Correct, बट हाँ. वो अच्छे कामों में लगे, ना. So instead of gangster walking they started calling it juke. जुक का बेसिकली मतलब है, हाँ, जुक का बेसिकली मतलब है, इट्स अ अफ्रीकन अमेरिकन टर्म, है ना. ब्लैक लोगों के सारी चीजें हैं, हमारी तो कोई चीज नहीं correct, है. हाँ. सो जुक का मतलब होता है कि जस्ट गेटिंग बक बेसिकली, और डांसिंग टू ट्राइबल म्यूजिक बेसिकली, है ना. Okay. सो बिकॉज पीपल वर डूइंग मूवमेंट्स लाइक जुकिन, बहुत ज्यादा कनेक्शन है अर्थ के साथ, ये बेसिक बाउंस है उनका. द वे दे डू बाउंस इज लाइक अ लॉट मेम्फिस. वो मेम्फिस है पूरा, ठीक है. मेम्फिस एक फ्लावर है जो तुम्हें मेम्फिस में ही मिलेगा, और बिकॉज द वे दे डू इट दे स्टार्टेड कॉलिंग इट जुक. ओके, जुकिन. सो जुकिन वो नाम बढ़ गया, सारे लोग जो गैंगस्टर वॉकिंग से जुकिन बोलाने लग गए, आई थिंक इन 20s, ठीक है. सो जुकिन के आगे उन्होंने मेम्फिस इसलिए लगाया बिकॉज इट्स अ सिटी स्टाइल, ये सिटी से निकला है. और हाँ, राइट नाउ पीपल स्टील ब्रो, पीपल फकिंग स्टील. Yeah, absolutely. और वहाँ के लोग दे डोंट वांट, मेम्फिस के लोग दे डोंट वांट कि लोग हमारी चीज उठा लें और फिर हमें क्रेडिट्स भी ना दें. दैट्स व्हाई दे पुट मेम्फिस इन फ्रंट ऑफ जुकिन, सो इट बिकेम मेम्फिस जुकिन. So it just not a name that is got changed, but approach on the footworks that we do, approach on the music. Music is all, music भी change हो गया. पहले का म्यूजिक क्रंक म्यूजिक था एक्चुअली में, जो मेम्फिस का म्यूजिक होता है, और अभी का म्यूजिक बहुत डिफरेंट है. इट्स अ हिप हॉप रैप म्यूजिक. बट इफ यू लाइक, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे अगर वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हिप हॉप रेवोल्यूशन करके, आई थिंक ऐसा ही कुछ है. सो उस डॉक्यूमेंट्री के सीजन 4 में आपको पता चलेगा कि मेम्फिस के क्या सीन है. लाइक मिसिसिपी एक सिटी है वहां पे, ये आसपास की जितनी भी सिटीज हैं उनके जो ओजीज हैं, जो एक्चुअली ओजी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, लाइक 3 6 माफिया हो गया, प्रोजेक्ट पैट हो गया, ये सब बिग नेम्स है, जूसी जे, है ना. ये सब इनका क्या मतलब, इन्होंने क्या बनाया है और इस चीज का क्या इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में राइट नाउ इन करंट एरा. इफ इफ यू लुक एट प्रॉपर्ली, कोई बड़ा नाम लेता हूँ, छोटे नाम से लोगों को पता भी नहीं होगा जूसी जे कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल. एक बड़ा नाम लेता हूँ, ड्रेक, राइट. ड्रेक का नाम लेता हूँ. ड्रेक इज अ लॉट मेम्फिस. ड्रेक इज मेम्फिस टू. ड्रेक के मेम्फिस से बहुत सारे टाइप्स हैं, आई थिंक, हाँ, टाइप्स हैं उसके. और ही फॉलोज माय टीचर, जिसने मुझे जुकिन सिखाई है, ही फॉलोज दैट गाय. एंड माय टीचर टोल्ड मी, ऑब्वियसली मैं प्राइवेट्स लेता हूँ उनसे, सो ही टोल्ड मी अबाउट ड्रेक एंड लाइक उसके टाइप्स कैसे हैं और क्या है. मतलब हिज डैड, ड्रेक्स डैड वाज अ ओल्ड स्कूल पिम्प बेसिकली, मेम्फिस पिम्प. हाँ, सो पिम्प से याद आया कि this whole thing like gangster walking, or call it Memphis Jukin, it's a culture of gangsters and pimps. Yeah. So this is a flower of Memphis, Tennessee. So तुम्हें अगर Memphis खुद को दिखाना है, like if you want people to know that you are really Memphis when you do Memphis Jukin, ये दो traits होना बहुत important to do. That's how you make a body language out of it. People are really focusing on footworks and just the steps, but it's more than that. It's more than that. So absolutely. Drake like really like the way he make music. If you, यार वो मैं समझा के सकता हूँ, एक स्लो वाइब है, हाँ, बम्पी है, स्लो रहता है, चिल रहता है थोड़ा. खासकर the way ड्रेक जिस आर्टिस्ट के साथ कोलैब्स करता है ड्रेक, जैसे हो गया ब्लॉक बॉय जेबी एक बंदा है. अच्छा. या फिर तुम उसके नॉर्मल गाने भी सुनोगे ना, सो हाई की शायद ऐसे करके वो जो बीट है ना, वो जो बम्पी शिट है, वो जो बम्पी वाइब है, वो मेम्फिस की है. मेम्फिस इम्पैक्टेड दैट शिट. तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मेम्फिस म्यूजिक ने बहुत इम्पैक्ट करे.
वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम एक्चुअली में स्टडी करने लगोगे इस चीज को. सो हाँ, तो यही है. मैं ऑफ टॉपिक तो नहीं गया ना ब्रो? नहीं sorted. Of course, like people need to understand. See, like I would take a little time. मतलब मैं अपना थोड़ा अभी यहाँ स्क्रीन लेता हूँ कि I wanted to say this and I have been saying this for a long time कि डांस को ना हम लोग को तक गलत, हमारा जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ ना डांस के साथ, शायद वो थोड़ा गलत है या फिर मिस इन्फॉर्म्ड है. ठीक है. Although that should not have been the case because इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही कल्चरली एक्टिव रहा है थ्रू आउट लाइक मिलेनिया. ठीक है. डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ cultural activity. We don't call it art, we call it cultural activities, we call it culture. Definitely. So हम हमेशा इसको जानते थे कि ये कल्चर है, बट somehow in the recent past हमने डांस को आर्ट बना दिया है, a thing to watch and get pleasure or a thing to do and get pleasure, whereas it has मतलब डांस या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म, जो भी है, सिंगिंग है, रैपिंग है, म्यूजिक बनाना है, पेंटिंग है, लाइक इट हैज अ होल कल्चर बिहाइंड इट. इसके पीछे लोग लगे हैं, उसके पीछे लाइक जैसे हम और तुम बात कर रहे हैं, उस टाइम के ओजीज साथ में मिलके बातें करते थे कि ओ दिस इज लुकिंग नॉट लुकिंग गुड और दिस थिंग शुड बी पोर्ट्रेड इन दिस वे, जस्ट लाइक यू सेड कि इसका नाम गैंगस्टर वॉक नहीं होना चाहिए बिकॉज गैंगस्टर इज अ नेगेटिव वर्ड फॉर देम, बिकॉज गैंग वॉर्स ने मतलब उन्होंने किलिंग देखी, उन्होंने डेड बॉडीज देखी अपने है ना, फ्रेंड्स की, फैमिलीज की. तो इस तरीके से सोच के सब कुछ बनाया गया है. एंड समहाउ मतलब हम लोगों तक पता नहीं कैसे इट वाज रियलिटी शोज और द मिसऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डांस क्लासेस जहाँ पे थियरी क्लासेस नहीं होते, हिस्ट्री नहीं बताई जाती है. सो मे बी इट इज दैट, मतलब क्या हो गया. एंड इट इज नेसेसरी. एंड नाउ दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट जुकिंग, मेम्फिस जुकिंग, उसका उसके रूट्स के, हाँ जुकिन, सॉरी जुकिन एंड उसके रूट्स के बारे में एंड उसके ओजीज के बारे में एंड द स्टोरी बिहाइंड इट, द कल्चर बिहाइंड इट. सो दिस इज हाउ लाइक आई वुड से इट कनेक्ट्स, है ना. मतलब ऐसे ही होना चाहिए. जस्ट लाइक अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, वेदर इट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री है ही ऑफ कोर्स, बट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सपोज यू आर लर्निंग साइंस, ओके, यू आर लर्निंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहले उस चैप्टर का पहला पार्ट क्या होता है कि हाउ डिड सर जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उन्होंने क्या किया. सो व्हाई आर वी टेलिंग ABCD of it? Exactly, why are we telling stories in science book? Because it is necessary for you to understand कि वहां पे क्या हुआ, तो तुमको कॉन्टेक्स्ट मिला कि अच्छा, so this is why this was born, है ना. And that's why, like, of course you're not off topic. I asked you about Memphis Jukin and you're absolutely on the right track. Talk a little bit about the Indian scene and talk about Memphis Jukin in India. So हाँ, यही है कि this is a right now in Memphis Jukin India. अब बात करते हैं. So Memphis Jukin India, हमने शायद से पिछले साल सितंबर, आई डोंट नो प्रॉपर्ली कब बना था पेज, बट ये पेज मैंने नहीं बनाया था, ये पेज मेरे लिल होमी ने बनाया था, सनी सिंह, एंड ही इज अ गैंगस्टर वॉकर. मतलब मेम्फिस जुकिन तो ऑब्वियसली करते ही हैं हम, बट उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो है गैंगस्टर वॉकिंग जैसी, बहुत ओल्ड स्कूल है, लूज है उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत, है ना. और उसका जो मूव करने का तरीका है, बहुत सारे ओजीज ने उसको बोला है कि उसका तरीका है उनकी जनरेशन जैसा, जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है. सो दैट मेक्स हिम अ लॉट लाइक अ गैंगस्टर वॉकर, बिकॉज वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो उसने भी यूज नहीं करी. वो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग यूज नहीं करता, वो टोस पे इतना नहीं रहता. और राइट नाउ इन मेम्फिस जुकिन, the difference that you can find in gangster walking and Memphis Jukin is basically the approach and footworks. So gangster walking में बहुत सारी steppings होती है, you can't hide bounce, but in Memphis Jukin you can hide bounce and you basically are on your tiptoes a lot, right? A lot. So right now people are not doing this shit because first मैंने पिछले साल gliding sliding technique workshop दी थी, just to let people know कि actually में क्या है, क्यों हवा क्यों बना के रखा है लोगों ने, जानो उसके बारे में. सो बहुत कम लोग आए थे डूड, बट जितने भी लोग आए थे दे गॉट टू नो अ लॉट, आई स्वेयर डूड, अ लॉट. देयर इज अ होमी ऑफ माइन फ्रॉम अहमदाबाद. सो बेसिकली हर सिटी से कुछ जोकर्स हैं. हर मैं
अभी नहीं कह सकते कि बहुत सारी सिटीज के एक एक जोकर है, बट आई थिंक अहमदाबाद में एक है और मुंबई में हम दो हैं, पंजाब में एक बंदा है जो मेरा होमी है, और आई डोंट थिंक सो बाकी हैं। बाकी द थिंग इज बहुत सारे लोग एक्टिवली सीख ही नहीं रहे इस चीज को, लर्न नहीं कर रहे एक्टिवली। वो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, सो इट कैन इफेक्ट योर ग्रोथ टू, यू नो। सो राइट नाउ हम 4 लोग होंगे, मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा, बाकी भी हैं बट आई विल नॉट टेक देयर नेम। सो धीरे धीरे इस चीज को बड़ा करना है अभी। हाँ, तो लास्ट ईयर हुआ क्या था, जब आई गॉट रिपोस्टेड थर्ड टाइम ऑन द मेम्फिस जुकिन पेज, एंड व्हेन आई से रिपोस्टेड ब्रो, डोंट लाइक थिंक कि ये तुम्हें ऐसे मिल जाएगा बिकॉज द वीडियो क्वालिटी या फिर बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स। ना, they will never, the OGs of the Memphis will never put you on the page until they trust you. I swear, that's why I always say I've been on the page. Yeah. कितने सारे लोग हैं dude, just ask yourself, कितने सारे लोग हैं जो अभी जुकिन कर रहे हैं, they none of them are on the page except me and my little homie Sunny. That's it. And यही एक सबसे बड़ा proof है that they really like trust us, because we have been fucking like working, bro. I've been putting in the work from so many years. We have been investing, we have been putting in money, dude. Still उन्हें दिखता है dude, उन्हें सच्ची में दिखता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बिकॉज अगर तुम्हें ऐसे ही शाउट आउट मिलते चले गए मेम्फिस जुकिन से, तो बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिस तरह का सीन अभी हो रहा है, बिना सीखे सिखाना सबसे बड़ी चीज। आई डोंट नो लोग क्यों कर रहे हैं ब्रो, लाइक देयर इज अ सिंपल पाथ जो तुम्हारे सामने बिछाया हुआ है कि भाई उनसे सीखो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, रिलेशनशिप बनाओ, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टीचर। राइट। बट पीपल आर, आई डोंट नो क्यों अपनी ही अपॉर्चुनिटीज पे लात मारना चाह रहे हैं, क्यों अपने आप को पहले रखना चाह रहे हैं। आई डोंट नो क्या रेस लगी है ये सीन में कि ये नहीं जाना चाहिए, हम जाएंगे पहले। और I think there can be two reasons. They know first कि यही हो सकता है, they know that they will never get the spot that we are on right now, और जो हमें मिलने वाला है future, because we are investing and we are like taking the right path. ये first reason हो सकता है, that's why they are doing it intentionally कि हमें रखना है अपने आप को। दूसरा ये हो सकता है कि वो करना ही नहीं चाहते, Could be. वो सीखना ही नहीं चाहते, जानबूझ के सीखना नहीं चाहते। ये 2 रीजन ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स देयर लॉस कि वो अगर अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पे ऐसे लात मारना चाह रहे हैं तो। बिकॉज लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो इशू विद मेनी पीपल कि वो लोग पूछते हैं कि मेम्फिस जुकिन इतना स्ट्रिक्ट स्टाइल क्यों है, व्हाई यू नीड अ परमिशन टू टीच। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज if you like compare this style with popping or big styles like breaking, popping, backing, जितने भी हो गए, ये स्टाइल्स एक जगह से नहीं निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिप हॉप कोई एक जगह से निकला, पॉपिंग कोई एक जगह से नहीं निकला। नाम होगा कहीं ना कहीं से, बट एक सिटी से प्रॉपर्ली निकला। हर जगह से कोई ना कोई कर रहा था पॉपिंग एक टाइम पे, समझ लो। ब्रेकिंग भी हर जगह कोई ना कोई हर सिटी से कर रहा था, तब जाके फैला। क्रम भी शायद से ऐसे ही है, एक सिटी से नहीं निकला, दैट्स व्हाई उस क्रम के आगे कोई सिटी का नाम नहीं होता। बट इन मेम्फिस जुकिन डूड, ये स्टाइल बाहर ही तब आया था जब ये बन चुका था। लेट मी टेल यू दैट। सो जब बना बनाया स्टाइल बाहर आता है ना, और उस पे अगर तुम सिटी का नाम डाल दो, जस्ट लाइक शिकागो फुटवर्क। आई डोंट नो अबाउट शिकागो फुटवर्क बिकॉज मैंने कभी भी ओजी से बात नहीं करी, बट आई थिंक सेम ही होगा मेरे हिसाब से कि शिकागो सामने नाम इसलिए लगाया बिकॉज इट्स फ्रॉम शिकागो। सो आई थिंक ये यही होगा रीजन, बिकॉज they don't, first of all, they don't want their style to like fucking sell out. They want to preserve their style, they want to protect their style, you know, जो बहुत मुश्किल से बने dude। ये top tier style ऐसे नहीं बना, like people fucking crush their toes dude, like they literally crush their toes, that's why वो अभी जो है वो है, समझ रहे हो। ये Correct. अगर वो नहीं बनाते ना तो ये मेम्फिस आई थिंक अभी भी बहुत वायलेंट ही है, बट उस टाइम पे और वायलेंट हो सकता था। Right. So हाँ, ये Great man. So like who are the people, like as you said कि इंडिया में ज्यादा लोग हैं नहीं, ठीक है, कुछ गिने चुने ही लोग हैं। So if suppose someone wants to learn, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, कैसे सीख सकते हैं? Okay, so I always say कि जितने भी लोग हैं, like हमारा मेम्फिस जुकिन इंडिया पेज एक कम्युनिटी पेज है, नॉट, इट्स नॉट माय पेज, इट्स नॉट माय लिटिल होमीज पेज, इट्स अ फकिंग कम्युनिटी पेज। सो वी शेयर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो भी लाइक स्टोरीज में टैग करते हैं, लाबिंग में वी शेयर अ लॉट, वी टेल देम कि क्या है क्या नहीं, वी
टेल देम अबाउट द टीचर्स. हमने हाईलाइट भी डाली हुई है हमारे मेफिस जोकिन इंडिया के पेज पे टीचर्स की. So टीचर्स there are a lot, basically there are a lot of teachers, dude. Second thing is मेफिस टेनेसी में ना लोग सिखाने ही बहुत बाद में लगे हैं चालू. वो शुरू में सिखाते नहीं थे. ये भी एक रीजन है बिकॉज दे ओनली वांट पीपल टू लर्न जो वहां पे जाए, मेफिस टेनेसी में फ्लाई आउट करके जाए. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज अगर वो ऐसे सिखाने लग जाते ना तो फ्लॉप हो जाता डूड. लिटरली लाइक लोग यूज करने लग जाते हैं. और उस समय मेफिस जोकिन बड़ा भी नहीं था ना. आई थिंक ये अभी अभी हुआ है 2015-16, क्योंकि फॉलोअर्स भी मैटर करता है ना, कितनी आंखें हैं. आई थिंक अभी बड़े हैं फॉलोअर्स रिसेंट टाइम में. जानते तो बहुत लोग थे बट अभी थोड़ा सा ज्यादा पॉप अप हुआ है इसका. हाँ, तो शुरू में सिखाते नहीं थे कोई ओजीज. वो अभी अभी रिसेंटली सिखाना चालू करा है ओजीज ने. लाइक ऑनलाइन वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ मैं. ओके. लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को सिखाना ही अभी अभी रिसेंटली चालू हुआ है. सो हाँ, तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं वी लाइक टेल देम अबाउट द टीचर्स. हाइलाइट्स में है जिस देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स. किसी को भी बनाओ अपना टीचर एंड लाइक आस्क देम. एंड yes, there is a master teacher, like a master teacher which is my teacher's teacher. So and he taught a lot of big names, dude. Lil Buck का नाम सुना होगा. G Nerd, ये जोकिन के नाम है. So बहुत बड़े नाम है ये एक्चुअली में, लाइक लेजेंड्स हैं. ठीक है, G Nerd, Lil Buck, डैनियल प्राइस, डीपी. जिस और डीपी की भी एक्चुअली एक ट्यूटोरियल है लाइक जो इंस्टाग्राम पे उसने खुद बना रखा है. वो खुद भी सिखाता है डीएक्सपी ट्यूटोरियल्स करके. So you can like hit him up for learning because he wrote the Juk book. Let me tell you about what is Juk book. The Juk book actually. I was Oh coming my to that. god, this is a hot topic, dude. I This was is a coming to super that. scientific shit. I tell fuck man. This is a scientific shit. Let me tell you why. So there is a connection between Jukin and ballet. Let me tell you how. Okay. In ballet, first of all, in ballet, you know, people stay on their toes. Yeah, all the time. All the time, but they don't come on streets. It's a stage style. It's a stage. You know, of course. So we, as a Memphis Jokers, we stay on streets and we wear fucking Nike Air Force. So the amount of footworks that we use, footnotes. Let me tell you what are footnotes. Footnotes are basically like all the parts of your feet that you use basically. Acha. So we, as a Memphis Jokers, we use everything except this upper surface part of our feet. Okay. So that makes us more of connected. Like connected, हमें वो बहुत ज़्यादा connect करता है बैले से. अब बैले में एक ही चीज़ है, बैले में लोग ज़्यादा ankle breaks नहीं करते. They just stay on their toes and they use this surface part a lot. I think कम ही करते हैं but करते हैं. Okay. So this is a difference that make us urban ballet. या urban ballet भी कहलाता है. Memphis Jokin is also called urban ballet because it's a street thing. And if you a lot this is a fucking, मैं बोलने लगूंगा बहुत खींच दूंगा इसको. ये ना बहुत ज्यादा ना, ये literally बहुत ज्यादा dynamic style है. I swear you can be super advanced, you can be super basic. Like one time you can be like on your toes, breaking your ankles and breaking every like footnote and making a combo out of it, and just footnotes, nothing else. And one time you can be like just feeling that shit and bump like ride that hoe, ride that joint. Ye slangs है that, ठीक है, Memphis के slangs हैं, right? Ride that hoe, bump in that shit, yo, chop in that hoe. So ये सब like Memphis की चीजें हैं. और हाँ, you can be like super advanced, super basic, अपना खुद का स्टाइल बना सकते हो. कितने सारे लोग हैं जो OGs की बात करूँगा, कितने सारे OGs हैं जिन्होंने सिर्फ like अपने ankle breaks पे ही स्टाइल बना दिया. They just do ankle breaks, but they never miss bounce. Bounce तो चलता रहता है. Bounce is a heartbeat. That's why I said. But the style they made out of it कि वो ankle break ही करेंगे, but they made a style out of it. और कुछ लोग हैं जो सिर्फ basics करते हैं. They just gangster walk. They just do L steps and they just move around. और उन्होंने वैसे स्टाइल बना दिया. So it depends. तुम अपना स्टाइल खुद बना सकते हो, बट तभी हो सकता है जब तुम इस चीज को लर्न करो. समझ में आ रहा है कितना डायनेमिक चीज है. अभी भी मैंने शायद बहुत चीजें मिस कर दी होंगी यार. सो जुक बुक बेसिकली इज अ साइंटिफिक बुक विच इज, उसमें ब्रेक डाउन करके बताए एवरी फकिंग सिंगल थिंग. ब्रेक डाउन कॉम्बोज ब्रेक डाउन करके लाइक अ साइंटिस्ट. समझ रहे हो, उसमें फॉर्मूलाज हैं डूड, लाइक लेजिट ये प्लस ब्रैकेट में ये प्लस ये तब ये जाके बनता है. लाइक वो लेजिट तुम्हें तभी समझ में आएगी तुम टीचर से जाके पूछोगे.
Yeah, If you right. don't know shit about और तुम जुक बुक बाय कर रहे हो just to get your just to tell people कि हाँ मेरे पास जुक बुक है और मैं सर्टिफाइड हूँ, ना, that's not gonna happen. तुम्हें कितनी सारी चीजें समझ नहीं आने वाली because वो टीचर्स ही समझा सकते हैं तुम्हें जिन्होंने इसको लिखा है. So DP wrote it and there is one more guy, UDIG dance. So मैं UDIG से अभी like teacher certification course में हूँ इस Okay, year और मेरी nice, team भी है nice. right now. Yes sir. So we are taking a lot. We are taking a right path too. So I think ये 12 हफ्ते का कोर्स होता है और जो टीचर से पहले स्टूडेंट का कोर्स होता है. So I completed that first from my like actual teacher Ryan. So अभी हम like I think 8th week में टीचर सर्टिफिकेशन कोर्स में. So ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद we will get certified from the actual Memphis community to teach this style as an instructor here और इसको like अच्छे से स्प्रेड करना. So हाँ राइट नाउ वही है. सो जुक बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, लाइक क्योंकि जितने भी चीजें हमें टीचर सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाई जा रही हैं वो मोस्टली जुक बुक से. उसमें लाइक हमें हमारे पास वो आते हैं, चैलेंजेस देते हैं हमारे टीचर्स कि लाइक डू दिस 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 सेकंड, 2 टाइम ये होगा, 2 टाइम ये होगा, 2 टाइम ये होगा, अपना खुद का कॉम्बो बनाओ और बाउंस नहीं छूटना चाहिए. और या फिर डू दिस 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 स्पिन प्लस दिस एंड उसको फिर एटीट्यूड में बदलो पूरा मेफिस का, समझ रहे हो. सो ये सब चैलेंजेस हमें देते हैं तब जाके लाइक हमारा दिमाग खुलता है. ये चैलेंजेस अभी अभी Great, आने शुरू great, हुए हैं. great, huh? सो Awesome, हाँ. awesome. This is like very organized way of teaching and और Yeah. मतलब बहुत मतलब Have you fucking listened? Sorry to interrupt, but have you ever thought कि ऐसी कोई बुक निकलेगी किसी स्टाइल की? like समझ के देखो. I wanted for a long time. मतलब मैं जब से हाँ पॉपिंग की बुक नहीं है, हिप हॉप ब्रेकिंग की किसी की बुक नहीं है. They just have the knowledge. The OGs have the knowledge, but किसी ने बुक नहीं लिखी भाई. This is the only fact that makes proof कि मेम्फिस जोकिन ना टॉप टियर क्यों है. साइंटिफिक है डूड ये बहुत ज्यादा. Stop playing with us. they took the right approach and मेरे को मतलब ये काफी अच्छा लगा. एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई लाइक मैं जब रिसर्च किया कि जुकबुक क्या, लाइक आई वाज लाइक ओ ग्रेट, दैट्स लाइक ये होना चाहिए एंड ये हर स्टाइल के लिए होना चाहिए आई गेस. थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, इफ नॉट अ लेजिट बुक, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टीचिंग, Definitely. है ना. कि जैसे हम लोग स्कूल्स में, हम लोग चाहे हम दोनों अलग सिटीज में रहे हैं, अलग स्कूल्स में पढ़े हैं, बट हमारा तरीका सेम रहा है. लाइक हमने पहले कुछ पढ़ा, उसके बाद अगली चीज पढ़ी, उसके बाद तो दैट्स हाउ Definitely. लाइक यू नो उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया पूरा सिस्टम. तो अगर ये डांस वाइज भी हो जाए तो आई गेस इन द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना. डेफिनेटली बहुत सारी नॉलेज मिस आउट ना हो इस चीज एग्जैक्टली, में. मिस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग. हट जाएगी, हाँ है ना, हाँ. एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड बहुत बहुत कुछ रहेगा. एंड पीपल विल अंडरस्टैंड एंड पीपल विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग इट, है ना. कि डेफिनेटली. एज अ लाइक एज अ करियर ऑप्शन, एज अ वे ऑफ लाइफ. तो जो रेस्पेक्ट अभी डांस मिस कर रहा है, तो शायद ये ऑर्गेनाइजेशन अगर हो जाए, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगे, तो फिर शायद ये रेस्पेक्ट भी बढ़ने लगे. एंड बढ़ेगी. yeah man, that's great. All बट right. मुझे एक और चीज हाँ हाँ. राइट नाउ कि बिकॉज अबाउट द सम पीपल जो बिना सीखे सिखा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एक चीज है. लेट मी टेल यू कि मेफिस जोकिन don't allow people, the community at Memphis, Tennessee, they don't allow people and they really don't want people जो बिना सीखे उनका कल्चर स्प्रेड कर रहे हैं. जस्ट लाइक तुम्हारे घर पे आके कोई और चीज उठा रहा है और वो उससे पैसे कमा रहे हैं बिना तुम्हें Okay. क्रेडिट्स दिए. बिना क्रेडिट, देखो क्रेडिट्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि बोल दो कि हाँ वो मेम्फिस जोकिन है ना. they made this style because they wanted to earn too. Let me tell you this, you can't forget that shit. ये भी एक पॉइंट है, उन्हें अर्न करना है dude. They don't want you to earn of that style that they created. Correct. हाँ. So if you're not investing, they तुम पे कभी भी भरोसा ही नहीं हो पाएगा ना ओजीज को. और जब भरोसा नहीं हो पाएगा तो एक ही चीज होगी, तुम जानबूझ के फिर ईगो दिखाओगे दैट हमें क्यों रोक रहे हो, ये स्टाइल यही स्टाइल क्यों कर रहा है, सब बाकी स्टाइल क्यों नहीं कर रहे. तो कुछ लोग दिखाएंगे जानबूझ के हम करेंगे. उससे होगा क्या कि इंफॉर्मेशन गलत पास होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैवंट मास्टर्ड दिस स्टाइल. और अगर तुम बेसिक इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हो उसको भी आज लाइक सीखना इंपॉर्टेंट है. आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन लोग यूट्यूब से सीख के सिखा रहे हैं, समझ रहे हो आप. तो YouTube doesn't even give you fucking 10% of the
knowledge that I just talked about here. समझ रहे हो, मैंने Correct है, बात कर दी 10% से बिल्कुल ज्यादा, तो एग्जैक्टली। सो वो 10% मिलती भी नहीं है उधर। तो वहां से देख के तुम जो सिखा रहे हो, मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि जो तुमसे सीखने आ रहा है वो नहीं सीख सकता यूट्यूब से फिर। एग्जैक्टली करेक्ट है। क्या मतलब बना फिर? मतलब बस नाम रखने के लिए तुम कल्चर को ऐसे ही मतलब सेल आउट कर रहे हो ना। तुम ओजीज का बात सुन रहे हो, ये 2 बार हो चुका है अभी इंडिया में राइट नाउ। एक देयर इज अ गाय, मैं नाम नहीं लूंगा डूड, आई स्वेयर दीस मॉफकर्स आर फकिंग क्लाउड चेजर्स, दे जस्ट वांट टू पुट देयर नेम आउट। सो देयर इज अ गाय हु टॉट एट आइडल्स, और ये मेफिस जोकिन का ओके ट्यूटोरियल निकाला। लेट मी टेल यू, आइडल्स ने ट्यूटोरियल डाल दिया पिछले साल। जब मैं मेफिस के पेज पे गया था ना, ये शायद से उसके 1 हफ्ते बाद अपलोड हो गया था। And that motherfucker don't even told in like in the podcast, he shot the podcast with that guy idols वाले के साथ, and in there didn't even mention कि हम भी यहाँ पे exist करते हैं, और he didn't even mention कि Memphis Joking का page है यहाँ पे। he just mentioned him and that other homie of his, बस। और उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे जो वो करा ना, अग्री करा उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे। आइडल्स वाले ने पूछा था उससे कि बिकॉज ऑफ यू मेफिस जोकिन यहाँ पे आया, बिकॉज ही ब्रॉट दिस शिट हियर, लाइक दिस इज ओके रियली अ बिग स्टेटमेंट। फकिंग आई एम नॉट एब्सोल्युटली किडिंग या ब्रो, दिस इज बिग स्टेटमेंट। अगर तुम बोल रहे हो कि एक स्टाइल आया, तो कितने सारे लोगों को गैंगस्टर वॉकिंग के बारे में अब क्यों पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ माई होमी। क्यों? क्यों कितने सारे लोगों को अभी पता चल रहा है कि मेफिस का एटीट्यूड है? कितने सारे लोगों को अभी पता चल रहा है कि एक्चुअली में बाउंस के डू, अगर तुम उसका ट्यूटोरियल जाके देखोगे ना, उसका बाउंस भी मास्टर्ड नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आता है कि मैच्योरिटी क्या होती है। ऑफ कोर्स इसका इसका वो भी हुआ था, रिएक्शन भी हुआ था। ओजीज ने मेफिस टेनेसी से स्पीकअप करा था, पूरी कम्युनिटी से स्पीकअप करा था। और आई डोंट नो, मैं उससे बंदे से मैंने बात करी है जिसने सिखाया था इंडिया में, बट वो मुझे कुछ और बोल रहा है ना, वो मुझे पूरा प्रूफ दे रहा है। सो आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। और ओजीज ने लाइक मुझे सामने कहा था दिस इज अ फ्रॉड, एंड ही इज एक्चुअली लाइक पुटिंग योर नेम डाउन। जो तुम अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, ये तुम्हारा नेम नीचे कर रहे हैं ये लोग। और रिसेंटली अभी स्पीक कर रहा था, मैंने बहुत रेज में था डूड मैं सच्ची में, बिकॉज एक बार ट्यूटोरियल डालने पे मैं चुप हो गया था, मैं समझ गया था ठीक है गलती हो गई होगी। सेकेंड टाइम जब पॉडकास्ट आई, उस बंदे ने अग्री करा उस चीज पे, तब मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा भाई क्या क्या चल रहा है ये, क्या चल क्या रहा है? फिर मैंने आइडल्स को अप्रोच करा। आइडल्स वाले ने एक चीज कही कि आइडल्स वाले ने उसको ऐसे नहीं ढूंढा, आइडल्स वाले ने किसी बंदे के थ्रू ढूंढा उस बंदे को, समझ या रहे हो, जिसने एब्सोल्युटली सिखाया। हाँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आया, बिकॉज राइट नाउ इन द सीन motherfuckers know who are we, motherfuckers know, they saw me on the page man, they fucking saw me on the page, they saw my homie on the page too, but they will never fucking recommend us to some big names, or they never fucking recommend us for these type of things जो actually में हमें करना चाहिए, समझ ओके रहे या हो? But they never do that shit because of the circle thing, man. I'm not in a circle, I'm not in a fucking crew, I'm a solo dolo guy bro. I'm going solo from fucking 9 years right now. अभी मुझे थोड़ा सा आया कि, क्योंकि मैं 2 बार और जा चुका हूँ, मैंने कहा पहले भी पेज पे, ये थर्ड टाइम है मेरा। और जब तीसरे टाइम पे भी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मेम्फिस जोकिन फैल रहा है, जब मुझे दिख ही नहीं रहा फैल रहा है ये, मुझे बस मेरे पास फेम आ रही है बस उस शार्ट आउट से, बट ये हम्म फैल नहीं रहा एक्चुअली में। सो ऑब्वियसली आई हैव टू लाइक टेक अ स्टेप। सो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड अ मेम्फिस जोकिन इंडिया पेज, और ये सर्टिफाइड पेज है। सो राइट नाउ अगर कोई भी फकअप होते हैं, वी गोना स्पीक अप, वी गोना टेल राइट पीपल कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। it is और like matlab sorry to interrupt you, it is like that time of the dance in India jab like जब हिप हॉप कल्चर एंड ब्रेकिंग एंड ये सब फैल रहा था इंडिया में एंड देयर वर स्मॉल स्मॉल forums in like in the east there was one forum, I know the big bang theory forum, ठीक है साउथ में चल रहा था, ठीक है बैंगलोर एंड स्टफ, वहां पे कुछ कुछ हो रहा था। ऑफ कोर्स मुंबई के सीन में कुछ और था, दिल्ली का सीन अलग था थोड़ा। तो क्योंकि उस टाइम इंटरनेट जैसे हम लोगों को इस टाइप से कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां पे छोटे छोटे फोरम्स थे जो एक्चुअल चीजें मतलब सिखा रहे थे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड स्कूल एंड लाइक हिप हॉप डांसेस, ठीक है, तो लाइक पीपल लाइक प्रोसेनजीत कुंडू सर, ठीक है, उन्होंने एंड उनके स्टूडेंट्स और उनके क्रू ने काफी हेल्प किया, ठीक है, मतलब फैलाने में अलग अलग सिटीज जाके। देन द फ्रीज जैम इन बैंगलोर, ठीक है, दे ब्रॉट इन स्टॉर्म,
ठीक है। तो हम्म, उस वजह से मतलब हम ना थोड़ा थोड़ा स्टेप लिया, और उसी तरीके से ये जो मेम्फिस जोकिन इंडिया करके पेज है, इन्होंने लाइक यू गाइस आर डूइंग द सेम थिंग, but because you have the technology, you have the resources, you're doing it online. It is not just yeah. another page. Like I would want the listeners to understand कि it is not just another page. ये वो जगह है जहां से तुमको legit information मिल सकती है. It is like uh, for the lack of words, call it a kind of a federation for Jukin in India. ठीक है, that will Yeah, take care कि जुकिन सही तरीके से फैल रहा है, ठीक है, सही तरीके सही definitely. इंफॉर्मेशन जा रहा है, प्लस जो भी लोग इस कम्युनिटी में हैं एक्चुअली अपना इनपुट दे रहे हैं, उनका उनकी राइट्स मतलब बराबर रहे, दे डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड, एंड Mm. like उनके साथ कुछ गलत ना हो, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. सो दैट इज व्हाट द मेम्फिस जुकिन पेज इज अबाउट. ठीक है, सो डोंट मतलब सही बोला. है ना, क्या होता है कि मतलब बिकॉज हर दिन पेज बनाने में किसको क्या लगता है यार, फ्री में बनता है, कोई Obviously. भी अकाउंट बना हाँ. लेगा, बट द थिंग इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट. ठीक है, इन द सेम वे मतलब जैसे शेप योर संडे, इट इज नॉट जस्ट अनदर पेज, इट इज नॉट जस्ट अ रीपोस्ट पेज. आई हैव इवन स्टॉप्ड रीपोस्टिंग बिकॉज मेरे को लग रहा था शायद उससे रिपोर्ट खराब हो रहा है कि इनको सब लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ रीपोस्ट पेज है. ठीक है, सो नो, इट इज नॉट अ रीपोस्ट पेज, इट इज एन एजुकेटिव प्लेटफॉर्म. ठीक है, आई वांट टू एजुकेट पीपल अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स, अबाउट द स्टफ दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सीन. जैसे यू टोल्ड कि जो कि सीन में अभी इंडिया में चल क्या रहा है, right? And about talk about the OGs, and of course how to make money, because that is fucking important. ठीक है, बिना That is पैसों के fucking क्या. important, dude. All We right, will so get to that, but मुझे एक चीज लास्ट बोलनी है right now कि what's my input in this shit, कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, और मैं फैक्ट्स बोलूंगा, अभी फैक्ट्स ही रखने चाहता हूँ सामने. मैं नहीं बोलना चाहता कि मैं बोस्ट नहीं करना चाहता अपने आप को बेसिकली. right, ठीक है, मैं फैक्ट्स रखूंगा सामने, और फैक्ट ये है कि राइट नाउ इन इंडिया आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन राइट नाउ इन इंडिया जो जुकिन भी कर रहा हो, जिसके पास इतना बड़ा क्राउड हो उसके साथ. देयर इज नो वन एक्सेप्ट मी. और इस चीज का अब ढंग से फायदा उठाना और इस चीज का गलत फायदा उठाना, ये दोनों मेरे हाथ में है, राइट. right, अब मैं कर सकता हूँ सारी सारी फेम, सारा क्लाउड अपनी तरफ खींच लूं, hmm, या मैं दूसरा कर सकता हूँ कि मैं जितने भी बिग नेम्स हैं, जितने भी क्राउड है मेरे पास, मैं उसको स्टाइल की तरफ भेजूं. समझ लो, correct, हाँ, कल्चर फैलाओ. उस पेज की तरफ भेजूं, या फिर अपने होमीज को आगे रखूं. सो देयर शुड बी समवन, नॉट जस्ट मी, देयर शुड बी समवन जो इस चीज को आगे रखे और अच्छे लोगों को आगे रखे जो डिजर्व करते हैं. Yeah, man. और हाँ, ये मेरा इनपुट है एक्चुअली में कि आई एम यूजिंग माई ओन क्लाउड नहीं होगा, fuck, आई एम यूजिंग माई Your ओन platform, नंबर्स, the platform, platform basically, yeah, yes. So I'm using my platform to promote something good. And मैं सिर्फ अपने होमीज को नहीं रख रहा, मैं ओजीज को भी सामने रख रहा हूँ. कितने सारे ओजीज हैं जिनके पास क्लाउड नहीं है, dude. correct, हाँ, right, that is true. So मैं उनको भी एक्सपोज कर रहा हूँ एक्चुअल लोगों से. So अभी हमारे मेम्फिस जोकिन इंडिया के पेज पे आई थिंक a lot big names हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं. लाइक देयर इज हर्षिता गौतम, बिग सिस हर्षिता गौतम, बिग ब्रो कुणाल हो गया, आई थिंक लियोनिल, बिग ब्रो लियो भी हैं. Oh, great. I can see There's a like lot, yeah. there is Joe, there is Sandy, there's everybody from the scene Sandy actually. is also, yes. Yeah, Sandy is there's also there. everybody from the scene. बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मिस कर रहा हूँ, बट बेसिकली हाँ, पीपल नो कि एक्चुअली में ये क्या है क्या नहीं है. सो दे रियली सपोर्ट, डूड, दे रियली सपोर्ट. और यार आई एम जस्ट सुपर ग्रेटफुल कि मैं इन लोगों से कनेक्ट हो पाया हूँ. आई स्वेयर, डूड, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टाइल दैट आई डू, जस्ट बिकॉज द टेक्निक्स दैट आई एम वर्किंग ऑन फ्रॉम फकिंग 9 years, वो अब जाके लोगों को दिख रही है, और अब जाके मैं उसकी वजह से लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ. लाइक this is long term thing, bro. I swear I'm proud of myself, bro. मैं जिस तरह चल रहा हूँ ना, I'm fucking proud of myself. Yeah, man, even like I'm proud of, and I would say कि everybody should be proud of you, and everybody in India who जिनको जोकिन पसंद है या फिर कहीं देखा है और मतलब they don't have an idea कि जोकिन है क्या. So I hope इस podcast के थ्रू आपको समझ आया है कि जोकिन actually क्या है. Now if you want to learn, go to Memphis Jokin India page. वहाँ टीचर्स, legit teachers, from Tennessee, from Memphis actually, वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर्स हैं. तो ऑफ कोर्स, एंड आई ऑलवेज से कि अगर तुम ओजी से सीख नहीं सकते हो, लाइक इफ द रिसोर्सेज डू नॉट परमिट, एटलीस्ट टॉक. ठीक है, इंफॉर्मेशन लो. ठीक है, इंफॉर्मेशन अभी कितने सारे, लेट मी टेल यू वन फैक्ट टू, कितने सारे ओजीज हैं जो मेरे होमीज को ना बिना पैसे के सिखा रहे हैं.
Yeah, just happens. because they are so Devoted just because to they it. are so like honest with themselves. Mm-hmm. So if you don't have money, you really can talk, bro. You can Yeah. really pay on installments. Like they just want you to respect their culture, and they will give you the same respect back. Absolutely. और Absolutely. जो लोग बोलते हैं ना कि हमें ओजी से हेट आ रहा है, दिस इज बुलशिट. मुझे क्यों नहीं Cannot आया? hate मैं तो you. हार्डकोर कर रहा हूँ इस चीज को. मैं तो हार्डकोर कर रहा हूँ इस चीज को. मुझे क्यों नहीं आया? There's a reason, because I'm showing respect. That's why they are showing respect back too. So it's a normal human behavior to Correct, speak. correct. Yeah, man. I mean, it was great. Like, even मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता चली. Although I'm not into जोकिन और उतना ज्यादा मेरे को पता भी नहीं था, but मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला. And I hope and I guess कि of course listeners को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला. And this is a completely new style to India, very raw and मतलब बहुत ही मतलब नया है. And people should learn this, and people should learn the right way. It is so important. Thank you so much for all that you're doing. Take it, whether it is through your Instagram account or whether it is through the Memphis Jukin India account. It's really commendable, and kudos to that. And I hope, and I want to support you guys, like I want to support every person who is actually making efforts है ना, कि डांस को लिटरल सही तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, एंड Definitely, कल्चर like को बढ़ा people, रहे हैं. right? Amen. People right now, they just want to put their name out कि हम first हैं, हम second हैं, वो third है. It doesn't matter until Doesn't you make matter. a change. Correct. है ना? You have to make a change. You have to pave the way, bro. That's what matters. So I think we are going for that status. Ki we are paving the way. We are not the first. We don't care about being first, dude. If you think you are first and you stop hardworking, वही बात पीछे से है. लोग आगे चले जाएंगे, dude. एंड वो अगर वो दिमाग में आ गया तो वो करप्शन आ जाता है, लाइक हाँ कि हाँ यार, आई एम दिस, आई वांट टू बी कॉल्ड दिस, आई वांट टू डू दिस. अगर लाइक think about the people who actually started the whole style, the whole culture. ठीक है, they were not thinking कि यार मुझे ऐसा बनना है कि मेरे नाम के आगे ओजी लगे या मेरे नाम के आगे the first person लगे. No, they were not thinking that. in actual Memphis community there are a lot of jukers. भाई सिर्फ 4-5 नहीं है. ये तो हमारी कंट्री में 4-5 हो गए. उधर शायद से like 200 300 भाई 500 जुकर्स हैं. अब सब अगर यही सोच के साथ चले कि हमें अपने आप को आगे रखना है, जलते चले जाएं, तो भाई वो कैसे बड़ी होगी कम्युनिटी? नहीं समझ लो, कोई कम्युनिटी नहीं, वेदर इट इज लाइक डांस कम्युनिटी या किसी भी तरीके की. वो अगर जो भी सेल्फिश इंसान रहा है ना, वो हमेशा लाइक ही हैज बीन लुक्ड डाउन अपॉन बाय हिस्ट्री, मैन. हिस्ट्री टेल्स इट. ठीक है, वी ऑलवेज लुक अप टू लीडर्स हु हैव बीन सेल्फलेस एंड हु हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी, टू द कल्चर. ठीक है, किसी भी लीडर का नाम ले लो, like history has it. Definitely. So that's what you guys are doing, and kudos to that, man. And, bro, right now you don't know कि मेरे पास क्या plans हैं इस चीज को बड़ा करने के लिए. I swear, like the plans that I have, because I have that connections. Yeah, man. I will be using like I will be like talking or telling people like the big names. Let me tell you a big name that मैं इस हफ्ते जाने वाला हूँ. I think this is Himanshu Dudani. Okay. So that's a big name, dude. That is a big name. That is a big name. So, right now. Just imagine अगर वो अपनी choreography में इस चीज को डाले. Do you think कि ये बड़ा नहीं होगा? Let me tell you, ये बड़ा होगा. अगर if I tell them कि actually में क्या है क्या नहीं है, if I just teach them from the surface, not see अब मैं teach कैसे कर सकता हूँ, ये भी लोग बोलेंगे कि क्यों सिखा रहे तू. अब इसका एक reason है. Teaching and getting paid as an instructor, official instructor, that is wrong. But if you are like collabing or if you are labbing with someone, you can teach surface things, I think. So वो गलत नहीं है. Okay. सीखना और कमाना और capitalizing it, उस चीज को सामने capitalize मत करो अभी right now, because you haven't like earned the respect and you haven't really like mastered that thing, dude. So हाँ वो गलत है. But if you are labbing with someone or jamming with someone, you can tell people कि ये है ऐसे करते हैं from the surface basically. वो तो बताना ही है. So right now I will be going like tomorrow or Saturday Sunday to teach him, not teach, सही teach नहीं है, jamming करने share with him. हाँ, just share with him. Share with him. So मैं उन्हें बताऊंगा actually में क्या है. और I hope कि like in February I think another big name Big Sis Akansha Sharma. He's a big name too. Great. She's my favorite too. Like मैं अभी क्या recently
So there are two of my big sis. One is Harshita Gautam and one is like Akansha. So ये लोग choreography community के हैं actually में, ठीक है? हाँ, They do absolutely. freestyle. हाँ I will हाँ not like categorize them, but they are from the choreo community. हाँ. So these are the big names जिनको मुझे ना like really रखना है यार सामने. I want to tell them how to gangster walk. Yeah, get work. I want to fucking tell them, dude, these two ladies will kill this shit. I swear. Just imagine, dude, they both doing the gangster walk, they're doing the L steps, and just Memphis, man, totally Memphis. They fucking Great, man. body that journey. I'm really anticipating for this one. Oh my god, so much. Oh, well, oh, great, great, great. All right, so with this we come to the last section of the podcast and my Yeah. favorite section, which I like to call "क्या dancers पैसा कमा पा रहे हैं?" So well, in this अरे भाई ये तो rappers वाला question हो गया. थोड़ा कॉकी क्या है, rappers पैसा कमाओ? थोड़ा भड़कने कॉकी गए है, लोग. बट भड़कने दो, ऐसे भी भड़क ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ जा रहा है. तो मतलब इसमें हम लोग मतलब बात करते हैं कि कैसे द whosoever is the guest, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि how you earn money and how are you making it in the monetary basis, so that जो भी लोग सुन रहे हैं, जो up and coming dancers हैं, वो मतलब इससे कुछ अगर उनको हेल्प हो पाए, उनको थोड़ा स्ट्राइक करे कि अच्छा वी कैन डू दिस ऑल्सो, है ना. सो दैट्स हाउ ऑल इट इज. एंड एज इफ इन केस नोबडी नोज, ही इज जस्ट 21. ठीक है, ही इज even 2 years younger than me. So I don't expect. I just turned 21. You just turned 21. Oh, great. 9th. Oh, this 9th. Oh, great. Oh Just man. turned 21. So you are, I guess, शायद तुम youngest person हो on the podcast. If not, Prashansha, I don't remember her age. ठीक है, I don't remember her age. But if not Prashansha, then you are the youngest. And for this season, you are the youngest for sure. ठीक है. Oh my god. So मुझे कोई award दोगी, Facebook पे नाम लिखो. So I don't expect, like मैंने प्रशंसा को भी यही बोला था कि I don't expect that you are earning, but if you're earning even a single rupee, that is a bonus thing, that is a great achievement. So what are you doing? Are you like putting in like doing something to earn money right now, or like what are your plans? Honestly, I would have been earning money. Yeah. But the only priority right now of mine is to make my name. Okay. Right now. So मैंने earn कर चुका हूँ मैं, और मैं earn कैसे कर चुका हूँ? Just by dancing on other people's music, but the music was from like US, समझ रहे हो? Yeah. हाँ. So I earned in dollars. I charged like $50 per music that time. और उसके बाद मैंने $80 का भी करा हुआ है, $100 का भी करा हुआ है. And I literally made $50,000 within 2 months. जब मैं स्कूल में 9th में था, I think तब लोग ना शायद से बंक मार रहे थे और लड़कियों के पीछे भाग रहे थे. जब मैं ऐसा कर रहा था, डॉलर्स में मिलते हैं तो हो जाता है उस समय, ठीक है. Right. और उस समय शायद से टाइम भी बहुत ट्रेंड्स का था, if I'm not wrong, 2015 या 16 की बात है, 14 की बात. So उस समय ट्रेंड्स का टाइम था बहुत. हाँ, तो लोगों को चाहिए था कि ये म्यूजिक को कोई बूम करे, हॉट बनाए. तो मैं ही नहीं अकेला, बट बहुत सारे लोग थे, of course. हाँ, so I have earned, but right now फिर मैंने छोड़ दिया वो सब, because obviously mature हो गया हूँ मैं right now, और I know how to like approach things differently right now, because अब ये real, अब मैं सिर्फ इंटरनेट पे नहीं कर रहा चीजें, मैं रियल वर्ल्ड में भी घुस रहा हूँ. So I go out. You're seeing the bigger picture. And I know कि अब मुझे बाहर भी निकलना पड़ेगा right now, because I have to earn. I have to like, मेरे पास गोल आ चुका है of Memphis Jukin, of my gliding sliding technique. तो मुझे उसको सामने रखने के लिए I have to like go out from my house and teach in future. So right now I'm not earning money. I could have been, but I'm not right now. Or I just disagree on your fucking statement that you just made कि 21 में you don't expect people to earn money. Like, I don't actually. There are a lot of big names. There are. See, I'll tell you. Sorry to cut you off. ठीक है. I know 14, 12 years old making millions. Okay, I personally have talked to them. ठीक है. They are fucking, like kids. ठीक है. उनको मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा, but they are making it. And to be honest, I consider that कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. But at 21, if you're not earning, that is
perfectly normal. Because suppose you were अगर तुम एक traditional route से जाते हैं, ठीक है, at 21 max to max you would have been at the last year of your college, ठीक है, say engineering or something, ठीक है, bachelor's degree के last year में होते हैं, और else एक internship पे होते हैं, ठीक है. So I do not expect anybody to earn at 21. And if anybody is if anybody is actually putting pressure on themselves कि यार I'm 21, I'm not earning, so no, don't put that, ठीक है. It is not expected from you, but if you do, वो बहुत बड़ा bonus है on your side, ठीक है. So kudos to that, and big shout outs to people who are making it at 21, ठीक है. But if you are not, it is perfectly fine. You are not supposed to. That is what I wanted to say. This is the message that I want to convey. ठीक है. And I'm not saying right now, right now I just want to say like about the ideas how to earn money. I think dancers के लिए ना, सिर्फ और तो लोगों के लिए नहीं ना, सिर्फ dancers के लिए बताना है. See, the thing is, dancers को categorize नहीं किया जा सकता. Just like I'm a dancer, but I have a whole video agency, ठीक है, जिसमें जहाँ पे मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, राइट. ओके तो वो तो आपने रूट ऑफ कर लिया ना, आपने डांसर बनने के बाद रूट ऑफ कर लिया, राइट. सी, रूट ऑफ नहीं बोलते हैं इसको कहते हैं लाइक इन like I took actually मैं अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, this is from actual one of the big financial advisors, not advisors, coaches of India, ठीक है. He said, and actually everybody says it and it is true, that you need to make, different sources of income in order to get rich. I get it. You have to. There is no like ऐसा हो ही नहीं. Tell me one person who did only one thing and got rich. Bro, everyone like कोई ना कोई बाद में कुछ ना कुछ कर देता है. विराट कोहली ने अभी कैफे खोल लिया, right? Absolutely, every person. ये तो normal है. And that is what I want to convey to dancers also, क्योंकि dancers की mentality, क्योंकि मेरी भी mentality थी ऐसी like 3 साल 4 साल पहले कि मेरे को डांस ही करना है, मेरे को डांस से ही कमाना है. I will not do that, ठीक है. I will not go and sit in a BPO call center, ठीक है, और I will not do a job. I will not. Don't say call center यार, तुम याद दिला रहे हो वो चीजें. हाँ, तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें demeaning नहीं है, ठीक है. And it is not, मतलब ये तुमको छोटा नहीं कर देती है. And if you have the skill, ठीक है, if you have the skill, ठीक है, because I know so many people, ठीक है, मैं जितने dancers को मिलता हूँ, एक इंसान में एक skill नहीं होता, बहुत कुछ होता है, ठीक है. And if you can monetize on it, then why not? Tell me why not? instead of asking me why. So that is the thing. So what are your plans? If it doesn't have to be an advice, if you want to share, you would like to share one thing of what you are planning to do next, like you share the best thing that you are going to learn and get certified, and that is the biggest thing that one can do. So other than that, what right plans now, first of all, the root of था ना, वो root of like I don't think so financially क्या बोलते हैं उसको, but in dance when you root off to some other styles from your like जो hardcore तुम करते हो, उसको root off कहते हैं basically. So हाँ, मुझे मैंने वहाँ पे use कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. But हाँ, तो अभी right now मैं पहला तो मेरा obviously सबको पता चल गया teacher certification course मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. Correct. Just to spread this. Secondary, I have to earn, I have to start earning too. Absolutely. अब जो मेरे अलग plans हैं, यार I don't think so I should बोल, but मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. क्या steal करोगे, क्या steal कर लोगे तुम? Exactly. That's what I say. मेरा दिमाग थोड़ा निकाल सकते हैं लोग. नहीं. So अभी I will be going into video production. If you like, bro, I swear, if you look I know on my profile ना, अभी देखोगे ना, पहले मुझे नहीं पता, अभी का देखोगे ना, तो I don't know यार, जब से मैं मुंबई आया ना, there's something that changed my whole fucking vision. I swear on God. इंद्रपुर में था मैं, but I don't know इंद्रपुर में ऐसा क्या था, but ये जो चेंज आया ना, लाइक मैं अपने कंफर्ट जोन से गॉड ने उठा के मुझे लाइक मुंबई में फेंक दिया. उसके बाद मैं दोबारा रोते रोते वापस चला गया था अकेले रहने, बट उसके बाद मैं दोबारा आ गया यहाँ पे, बिकॉज आना ही था क्योंकि फैमिली यहाँ पर है.
करेक्ट. सो यहाँ पे आके एक चेंज तो मैंने फील करा है, जो मेंटालिटी चेंज हुआ है ना, आई डोंट नो क्या हवा है यहाँ पे, क्या पानी है, बट जो मेंटालिटी चेंज हुई है ना डूड, मैंने क्वालिटी पे वर्क करना बहुत चालू कर दिया लाइक 2020 में स्ट्रेट अप। और उसके बाद कनेक्शन बनते चले गए, जस्ट बिकॉज देखो एक चीज होती है, तुम बैटल आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, बट इफ राइट नाउ इफ यू लुक, आई डोंट थिंक सो तुम बैटल से इतना कमा लोगे यार, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कमा पाओगे बैटल जीत जीत के। That is सो one राइट way. नाउ That cannot be the only way. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। अब Mhm. जब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इधर यू कैन मेक अ फोटोग्राफी थिंग और एक वीडियो थिंग, ये दो ही चीजें हैं। सो राइट नाउ आई एम इनटू लाइक वीडियोग्राफी बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मेरी शक्ल देख के लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं मेरी स्किल्स और मेरे विजन देख के कनेक्ट हो रहे हैं लोग, मेरा मेरा लाइक मेरा माइंडसेट देख के कनेक्ट हो रहे हैं, और मैं वही रखना चाहता हूँ। मैं नहीं दिखाना Right. चाहता कि मैं सुपरस्टार हूँ या फिर जो हूँ, मैं हूँ भाई। और जो भी कनेक्ट हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट कि मेरे विजुअल्स टाइट होते हैं। अब मैं विजुअल से बहुत ज्यादा काम करने लगा हूँ। मेरा मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोग एक्चुअली में बहुत वीडियो प्रोडक्शन में बहुत टाइट है। एक बंदा है क्विली, क्विली नहीं बोलूंगा, कूली करके नाम, Qly. क्यू हाँ, डब्ल्यू ई एल Qly. वाई Qly. हाँ, He is the क्यूली नहीं बोलते best उसको man. ब्रो, क्या बोलते हैं? क्यूली नहीं है, उसको स्पेल करते कूली, कूली, क्यू को वो ईगो ना साइलेंट कर दो, Okay. कूली, दैट्स इट। मैंने एक Qly. हिप Okay. हॉप, हाँ हिप हाँ. हॉप हैरी एक बंदा है, हिप हॉप हैरी टीवी करके कुछ अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे उसने उसकी Okay. एक हाँ. स्टॉर्म करके, हाँ तो काउंसिल ऑफ वुमेन्स करके एक क्रू है जो Okay. सिर्फ Okay. लड़कियों का है, एलए का क्रू है। सो अगर तुम देखोगे ना, सारी जितने भी कुली शूट करता है ना, वो जितने भी फीमेल्स होती है, शियोपैथा जोन्स हो गई, योई हो गई, स्टॉर्म हो गई, और जितने में ये सब उन्हीं की शूट करता है बेसिकली। अगर तुम अभी भी जाके देखोगे उसकी प्रोफाइल पे सबसे पहली वीडियो होगी स्टॉर्म की, स्टॉर्म दीबराज। वो शी इज माय बिग सिस, लाइक आई हैव बीन कनेक्टेड विद हर लाइक व्हेन आई थिंक 2019 में हमारा कनेक्शन हुआ था ऑन इंस्टाग्राम। शी लाइक टोल्ड मी, शी फर्स्ट मैंने उन्हें अप्रिशिएट करा था उनका काम के लिए, उसके बाद शी टोल्ड मी लाइक कहाँ से हो, मैंने बताया, शी टोल्ड मी टू बिलीव इन माई सेल्फ। और हाँ, लाइक आई एम डोप, लाइक जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, जहाँ से भी हो तुम, इट डजंट मैटर तुम कहाँ से हो, you can make it to LA if you like believe in yourself. So Correct. if someone like tell you that in your first conversation, so एक अलग सा ही connection बन जाता है। So हाँ, in short बहुत सारे connection है, और क्विली उन्हीं की शूट करता है। So मैं उसी को देखता हूँ बेसिकली। अभी मेरे दिमाग में क्विली है भाई, क्योंकि वो He is बंदा too good, उस तरह man. Yeah, man. का ब्रो, द फिश I आई, उसने love जो his. फिश आई को हॉट करे ना, आई स्वेयर Ah, actually, he's फिश आई लेंस mastered को it. यूज ही नहीं करता कोई यार। I love, तो भाई मतलब जो उसने I actually like I can understand तुम जो बोल रहे हो, and people who सो like राइट नाउ, videos and all. हाँ Yeah, man. डेफिनेटली। सो राइट नाउ उसके बहुत ही टाइट है यार, विजुअल्स तो बहुत ही टाइट है उसके पास। सो राइट नाउ आई एम प्रीचिंग फॉर दैट, आई एम नॉट लाइक कॉपिंग हिम, आई एम जस्ट प्रीचिंग फॉर दैट, क्योंकि फिश आई सिर्फ वो यूज नहीं करता, बहुत यूज करते हैं, Fish बट eye तो द वे बहुत ही पहले यूजेस से इट, है. हाँ, exactly. हाँ द वे ही यूजेस हाँ, द fucking face tracking shit bro, I swear amazing. bro, if you like look at the face tracking he do, उसकी टेक्निक डिफरेंट है। अब वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा टेक्निक कैसे डिफरेंट है, वो तुम्हें एडिटिंग में समझ में आएगा कैसे Right. डिफरेंट होती है उसकी टेक्निक। Correct. तो वो जो कट 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 था ऐसे चलता है ना उसकी फेस ट्रैकिंग में, वो उसकी टेक्निक है। तो नॉर्मली तुम देखोगे नहीं ऐसे अगर तुम करोगे तो। सो वो ये मैं अभी उसके लिए प्रीच कर रहा हूँ, वीडियो प्रोडक्शन के लिए राइट नाउ, और टीचर्स राइट नाउ मेरे दिमाग में दो चीजें हैं। और उसके बाद इफ आई बिकम बिग, इफ आई लाइक रियली लाइक, देखो मेरे मेरे दिमाग में अभी ये नहीं है कि मैं रियलिटी शो में जाऊंगा उसके बाद बिग होऊंगा ना ब्रो। That राइट नाउ आई वांट टू बिकम बिग बट ऑर्गेनिकली, क्योंकि देखो जाए रियलिटी शो भी एक तरह से प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी प्लेटफॉर्म है, दोनों पे हार्ड वर्क correct. होता है, ठीक है। दिमाग यूज करना आना चाहिए तुम्हें, अगर तुम एक्चुअली में लाइक अपने आप को लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करना चाहते हो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज स्मार्ट वर्क राइट नाउ, ठीक है। बैटल्स इज गुड, बट इन फ्यूचर तुम क्या देखते हो, तुम कैसे अर्न करना चाहते हो। हाँ मैं बाहर निकलता हूँ, बट मैं मोस्टली लाइक हसल करने नहीं निकलता। अभी मैं अपनी बात ही बताऊंगा, मैं हसल करने नहीं निकलता, लाइक हसलिंग लाइक कमाने नहीं निकलता। मैं सिर्फ वाइब एक्सचेंज करने निकलता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करने निकलता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करने निकलता हूँ, दैट्स इट। और मैं घर पे आके उस चीज को डाल देता हूँ सामने फ्रंट सोशल मीडिया पे, ठीक है। उससे जितने भी कनेक्शन बनते हैं, उससे in future you can like capitalize on that See, shit. connections So वो ये is like super the important. correct, super important, and
मतलब मैं always like if you like I don't know if you have listened to any of the podcast, almost हर एक में ये लाइन जाता है कि your network is your net worth. So ये you need to make your network man, and उसी से काम मिलता है. Simple है. और डेफिनेटली, और अगर एक यार लोगों को ना कितना वो लगता है नेटवर्क बनाना कैसे बनाओगे, यूट्यूब पे जाओ, Sure. यूट्यूब पे लोग बोलते हैं इन इन 10 days 10K, हट, घंटा कुछ नहीं होता ब्रो, ऐसा Forget about ऐसा that. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, Forget about so that. you have to like be open minded dude, you have to Exactly. like create your own ways. अब मैं अपनी टेक्निक क्या बताऊं, मैं बोलूंगा नहीं because I want to like keep it like secret. All मैं but respect. एक चीज ये है, बट जिस तरह मेरे कनेक्शन बन रहे हैं सुपर ऑर्गेनिक, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सुपर ऑर्गेनिक. Absolutely man. So वो है, you All can right, earn man. many things, yeah. Like right now I'm earning through no shit. I'm not earning no shit. So You're अभी मैं earning सिर्फ much. wait कर, Like the thing is कि मतलब देखो क्या है ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट या ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है पॉडकास्ट, और मैं ज्यादा नहीं मतलब टाइम लूंगा, बस थोड़ा सा बोलूंगा कि शायद मनी या अर्निंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है हमारा, ठीक है, बिकॉज हमें स्कूल में नहीं बताया जाता है सही से, ठीक है. एंड मेरे हिसाब से, ठीक है, ये एक काफी फेमस मतलब काफी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि मैं तुमको भी मतलब ऑन द कॉल वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि करेंसी इज नॉट जस्ट money wala currency. There could be the money wala currency, but other than there could be emotional currency, there could be social currency, ठीक है. there are I guess ये 3-4 categories हैं currency के, ठीक है, which I think is the way people should understand, ठीक है. and हाँ, वो और एक ये क्या कहते हैं उसको, educative type, ठीक है. if you're learning something, you're getting it, ठीक है, वो तुम earn कर रहे हो, ठीक है, दैट यू अर्निंग विच यू कैन मतलब बाद में तुम उस पे किस तरीके से काम करते हो, दैट कैन बी लाइक द स्किल दैट यू अर्निंग, ठीक है, लर्निंग, दैट विल बिकम योर ब्रेड अर्नर. देन द कनेक्शंस दैट यू आर मेकिंग, दैट इज अ सोशल करेंसी. द पीपल दैट यू आर मीटिंग, दैट इज अ सोशल करेंसी. एंड यू नेवर नो कि कौन कब काम आ जाए, ठीक है, बिकॉज मतलब like people always say, ठीक है, referrals and everything, वो बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है. my whole business is based on referrals. I don't do outreach, I don't do cold emails, ठीक है. मेरा पूरा business सिर्फ referrals पे चलता है. people I have worked with, they refer me to other people, ठीक है. so that is one thing. emotional currency, like suppose तुमको किसी से मिलना है या किसी से बात करनी है, ठीक है, किसी से कुछ सीखना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, इट कुड बी एन ओजी, इट कुड बी समबडी, ठीक है. अब वो प्रोसेस में जब तुम वो उनसे सीखते हो, मिलते हो, बात करते हो, what you're receiving is kind of a currency which is an emotional currency, which I think कि तुमको emotionally अच्छा लग रहा है, you're feeling good, you're feeling happy, and what is greater than feeling happy? So I guess what you are earning right now is much greater than just the currency notes that we spend, ठीक है, because वो जो तुम फ्यूचर में अभी यूज करोगे ना, that will make you like I don't know millions, billions, trillions, I don't know अभी क्या क्या आएगा, ठीक है. so that's what it is man, and I hope that you do good, and I like like all good wishes to you, and kudos to what you're doing, and kudos to another shout out, like once again shout out to Memphis Juke in India page. And if you're a juker in India or you want to juke, you know the place. All right man, thank you so much for coming, thank you so much for sharing this with people, and I loved the conversation, I loved it, and मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला man. And मुझे भी same goes for here too. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला. So हाँ, thank you for like creating this shit man, thank you for letting me speak out. Yeah, man, always pleasure. वो थोड़ा हीटेड डिस्कशन हो गया क्या, बट कोई बात नहीं यार, चलता है. स्टाइल ही इतना हीटेड है, स्टाइल ही इतना एनर्जेटिक है, इतना कॉम्पिटिटिव है, तो हो ही जाता है. बट इस पॉडकास्ट की एक खास बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि इमेजिनेट्रिक्स इज जस्ट 21 years old. एंड like 21 years पे आप अगर नहीं भी कमाते हो तो इट्स ओके, बिकॉज ये आपकी लर्निंग फेज है, ये आपकी अर्निंग फेज नहीं है लाइफ की. इफ़ यू आर अर्निंग देन लाइक सल्यूट, कूडोज, हैट्स ऑफ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. बट इफ़ यू आर नॉट, जस्ट नो दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट.
ठीक है, at least you know this is the learning phase and Imaginatrix is so clear about that कि उसे अभी learn करना है and you should learn this from him. You know, ये clarity होनी चाहिए कि अभी मुझे earn नहीं करना है, अभी मुझे learn करना है, because the more I learn this skill, the more I master this art, you know, I can earn so much more in the future. So yeah, this is the key takeaway, and I hope you got to know about a really dope new style. It is so amazing, it is so unconventional, man. I love it. I love watching it. I wish I could do it as good as he does it. But you know, I've tried and sprained my ankle and all those shit. If you wanna try, अगर आपको सीखना है तो you know the place, right? Memphis Jukin India के पेज पे जाओ, वहाँ tutorials है, वहाँ पे कुछ OGs mentioned है, आप OGs से जाके सीखो. Make sure you go follow their page also. Make sure you go follow Imaginatrix on Instagram. It is a link below. Make sure you go follow Shape Your Sunday because हम हर हफ्ते ऐसा ही कुछ नया content लेते आएंगे through our podcast. And it is not over yet. Wait for it. मजाक कर रहा था, खत्म हो चुका है, और क्या बातें करें. अब बातें करें कि हम next week मिलते हैं next podcast में. Until then, keep dancing, keep shaping, and make lots and lots of money.